Hello and welcome to Laksh Academy. This is Prerna Sinha. As we are practicing the previous year questions for NVS PGT teacher for the subject English, now moving forward, अगर आप लोगों ने लक्ष्य एकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया है देन यू कैन इंस्टॉल इट फ्रॉम प्ले स्टोर द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इफ यू वांट टू join the telegram channel for Lakshya Academy you can join it, the link is given in the description box. And we have recently launched a new course for NVS PGT for the subject English. And in this course, you will get daily 3 to 4 recorded lectures. We have recorded classes plus live classes. We have doubt solving sessions. We have revision classes. We have videos. We provide PDFs and MCQ tests. So, if you want to enroll to this course, use my coupon code that is Prerna05 to get 5% discount. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम लोगों ने कल की क्लास में 70 तक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया था एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन नंबर 71 दैट इज द डॉक्टर ऑलवेज कम्स, ऑप्शन है whenever he is requested, while he is requested, often when requested या फिर sometimes he is requested. These options are totally wrong. The correct option is whenever he is requested, right? The doctor always comes whenever he is requested. Now coming to question number 72, that is East of Eden, a novel published in 1952 was written by. So East of Eden, it's a novel which was published in the year 1952, was written by John Steinbeck, right? The answer is John Steinbeck. Now coming कि East of Eden कैसी नॉवेल है, राइट? तो ईस्ट ऑफ इडन नॉवेल जो है वो किस तरह की नॉवेल है? Now coming to East of Eden. East of Eden is a novel by American author and Nobel Prize winner John Steinbeck. You have to remember that John Steinbeck was the winner of Nobel Prize and it was published in September 1952. The work is regarded by many to be Steinbeck's most ambitious novel and by Steinbeck himself to be his मैग्नम ओपस. सो ये जो वर्क है ईस्ट ऑफ इडन बाय स्टीनबेक, वो ना उनका मोस्ट एम्बिशियस नॉवेल था, राइट? एंड स्टीनबेक खुद इस वर्क को एक मैग्नम ओपस समझते थे. सो ईस्ट ऑफ इडन is a novel by American author and Nobel Prize winner, that is John Steinbeck. Now coming to question number 73, that is one of the best dramas ever written by William Shakespeare, known as the darkest of the dark comedy. ये जो ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का बेस्ट ड्रामा है, बट इट इज नोन एज द डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी, दैट इज मेजर फॉर मेजर. मेजर फॉर मेजर जो है ये शेक्सपियर का बेस्ट ड्रामा है एंड it is known as the darkest of the dark comedy. You have to remember that measure for measure is a dark comedy. अगर एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन आए then you will be able to answer this question very easily कि measure for measure is a darkest of the dark comedy. Now coming to question number 74, an impulse from a vernal wood may teach you more of man, of more evil and of good than all the sages can. These lines was written by Dash in his poem The Table Turned. अब The Table Turned क्या है? ये किसका वर्क है? The Table Turned. तो The Table Turned ये जो वर्क है, this work is written by William Wordsworth. The answer will be William Wordsworth. And ये जो Table Turned जो उनका पोएम है, it was published in Lyrical Ballads. You have to remember that it was published in Lyrical Ballads. कब पब्लिश हुआ था? तो 1798 में ये लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश हुआ था. द वर्क टेबल टर्न, दिस वाज रिटन इन हिज पोएम that is The Table Turned by William Wordsworth. So very beautiful lines. One impulse from a vernal wood may teach you more of man, of more evil and of good than all the sages can.
This was written by William Wordsworth in his poem The Table Turned, which was published in Lyrical Ballads in 1798. Now coming to question number 75, that is, athwart is a poetic word that suggests which of the following meanings in poetry. Athwart is a poetic word and इसका मतलब क्या होता है? पोएट्री में एथवॉट का मतलब क्या होता है? तो पोएट्री में एथवॉट का मतलब होता है अक्रॉस. सो द आंसर विल बी अक्रॉस. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 76, दैट इज, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स इज नेचर बोथ लॉ एंड इम्पल्स? ऐसा कौन सा पोएट है जिनके लिए नेचर जो है वो लॉ भी है एंड इम्पल्स भी है? तो आंसर होगा वर्ड्सवर्थ. यू रिमेम्बर दैट वर्ड्सवर्थ जो है वो नेचर पोएट कहलाते हैं. वो बेसिकली नेचर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं एंड ये रोमांटिसिज्म का जो इनका मेन मोटो है, ये लोग साइंटिफिक चीजों में बिलीव नहीं करते हैं एंड दे जस्ट बिलीव इन इंस्पिरेशन एंड इनर फीलिंग्स. एंड विलियम वर्ड्सवर्थ इज आल्सो कॉल्ड नेचर पोएट. सो उनका मेन फोकस का क्या था? So William Wordsworth is considered to be a nature poet and उनका main concern nature था and वो nature को both law and impulse. Now coming to question number 77, Rosalind, the central female character, appears in which of the following Shakespearean play? तो Rosalind कौन से play में है? Very easy answer, that is Rosalind As You Like It में appear होती है. You have to remember that Rosalind कौन से वर्क में अपीयर होती है? विलियम शेक्सपियर के. तो एज यू लाइक इट में रोजालिंड अपीयर होती है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 78, themes of social class, poverty and crime with Pip as the main character is found in which of the following novels by Charles Dickens? तो ये जो कैरेक्टर है पिप, ये बहुत फेमस कैरेक्टर है, राइट? बहुत ही फेमस कैरेक्टर है चार्ल्स डिकन के वर्क ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का. ग्रेट एक्सपेक्टेशन का ये एक बहुत बड़ा फेमस कैरेक्टर है जिसका नाम है पिप. एंड ये जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है उसे लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने. तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज द 13th novel by Charles Dickens and his penultimate completed novel. It depicts the education of an orphan named Pip. The book is a build-up roman, a coming age of story. You have to also remember that कौन सा वर्क पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा वर्क जो है चार्ल्स डिकेंस का वो बिल्डअप्स रोमन है, या फिर आप लोगों को ना ऑप्शंस में दे दिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिल्डअप्स रोमन. सो ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज अ बिल्डअप्स रोमन एंड ये क्या है ना कि ये 13th novel by Charles Dickens. It is the 13th novel by Charles Dickens. Okay, 13th novel by Charles Dickens and बिल्डअप्स रोमन भी है. तो आप लोगों को याद रखना है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो है वो बिल्डअप्स रोमन है एंड कमिंग एज ऑफ स्टोरी है. एंड ये जो स्टोरी है ये डिपिक्ट करती है द एजुकेशन ऑफ एन ऑर्फन नेम पिप. ये पिप के एजुकेशन पे को डिपिक्ट करती है. Now coming to question number 79, that is, it is seen dash cricketers sometimes questions the rules framed by ICC. तो क्या होगा? It is seen that cricketers sometimes questions the rules framed by ICC. तो आंसर में क्या होगा यहाँ पे? That होगा ऑप्शन में. It is seen that cricketers sometimes questions the rule framed by ICC. Option is that. The correct answer is that. Now coming to question number 80. Oh blessed bird, the earth we pace again appears to be an unsubstantial fairy place that is fit have for thee. This description by Wordsworth is about which of the following bird? वो जो लाइन है that is, oh blessed bird, the earth we pace again appears to be an unsubstantial fairy place that is fit have for thee. ये डिस्क्रिप्शन कौन से बर्ड के लिए दिया गया है? सो द आंसर विल बी द ककू, राइट? द ककू उनका एक वर्क है, तो ये ककू के लिए ये डिस्क्रिप्शन दिया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने. दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द ककू, राइट, बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. सो
मैंने आज की क्लास में आप लोगों को क्या बताया? मैंने बताया ईस्ट ऑफ ईडन ये किसके द्वारा लिखा गया है? सो ये जॉन स्टीनबेक के द्वारा लिखा गया है एंड ही वाज अ नोबेल प्राइज विनर एंड ही वाज एन अमेरिकन ऑथर। ये नॉवल कब पब्लिश्ड हुई है? तो 1952 में इट वाज पब्लिश्ड बाय जॉन स्टीनबेक। क्वेश्चन नंबर 73 क्या था? डार्केस्ट ऑफ डार्क कॉमेडी किसको कहते हैं? विलियम शेक्सपियर के ऐसा कौन सा वर्क है जिसे हम लोग डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी कहते हैं? सो द आंसर विल बी मेजर फॉर मेजर। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है? वन impulse from a vulnerable may teach you more of man, of more evil and of good than all the sages can. This was written by William Wordsworth in his poem The Tables Turned. ये जो टेबल्स टर्न है it was published in Lyrical Ballads in 1798. You have to remember कि टेबल्स टर्न लिरिकल बैलेट्स में पब्लिश हुई थी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 75 क्या था? अथ व्हाट इज अ पोएटिक वर्ड दैट सजेस्ट द फॉलोइंग मीनिंग इन पोएट्री। अथ व्हाट का मतलब क्या होता है? अक्रॉस। तो आंसर क्या होगा? अक्रॉस। 76 में क्या था? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट नेचर इज बोथ लॉ एंड इम्पल्स। मैंने बताया ना कि वर्ड्सवर्थ ही एक ऐसे हैं जो नेचर पोएट है एंड नेचर उनके लिए लॉ है एंड इम्पल्स दोनों है। सो आंसर क्या होगा? वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या था कि रोजालिंड ये जो कैरेक्टर है फीमेल कैरेक्टर ये कौन से प्ले में अपीयर होती है? तो आंसर होगा एज यू लाइक इट। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या था कि पिप जो है वो कौन से नॉवेल्स में पाया जाता है? बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो पिप है, पिप का जो कैरेक्टर है ये कौन से नॉवल में पाया जाता है? पिप जो है वो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में, वो आप उस पे ही पिप पे ही ये ग्रेट एक्सपेक्टेशंस टोटली फोकस है कि पिप के एजुकेशन पे जो पिप जो था वो एक अनाथ था एंड हम लोग द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में बेसिकली पिप की कहानी को पढ़ते हैं एंड द थीम ऑफ सोशल क्लास एंड पॉवर्टी एंड क्राइम ये सारी चीजें हम ग्रेट एक्सपेक्टेशन में पढ़ते हैं जिसे लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने। क्वेश्चन नंबर 79 एक ग्रामर का क्वेश्चन था दैट इज इट इज सीन दैट क्रिकेटर्स sometimes questions the rules framed by ICC। आंसर में क्या मैंने बताया था कि that होगा। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या था? Oh blessed bird, the earth we pace again appears to be an unsubstantial fairy place that is fit hap for thee. This description by Wordsworth is about which of the following bird? तो कक्कू के बारे में उन्होंने ये डिस्क्रिप्शन किया है, कक्कू को उन्होंने डिस्क्राइब किया है ओ ब्लेस बर्ड। सो आंसर क्या होगा? कक्कू, राइट। सो अगर आप लोगों ने अभी तक लक्ष्य एकेडमी के ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है एंड हमारे न्यू कोर्सेज में एनरोल नहीं किया है तो एनरोल इट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।